اردو سٹوریز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں غازی کا تیسرا قسط۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارا ساتھی دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ہمیں ہمارے ٹکٹ تما دیے اور ہم پانچوں اجنبی بن کر ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے۔ تقریباً فون گھنٹے بعد گنگا نگر آیا۔ یہ خاصا بڑا اسٹیشن تھا۔ ہم ایک ایک کر کے اترے اور چائے پوریوں کا ناشتہ کیا اور پھر الگ الگ ڈبے میں بیٹھ گئے۔ ہماری منزل بٹنڈا جنکشن تھی، جہاں سے ہم نے دہلی کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔ بٹنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا جنکشن تھا۔ ٹرین بٹنڈا اسٹیشن پر پہنچی تو ہم ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب ہم بارڈر سے خاصا دور آ چکے تھے۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ جو بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن تھی وہ بھی دور ہو چکی تھی۔ ہم نے بازار سے شیونگ سامان اور سگریٹ وغیرہ خریدے۔ وائرلیس سیٹ بھی خاصی پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ ایک ہی ذمہ دار کے پاس سامان اور وائرلیس سیٹ ایک ہی بیگ میں تھا، جس کو بیگ کھولتے ہوئے خاصی گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لہٰذا ہم نے ایک بیگ وائرلیس سیٹ کے لیے خریدا اور اس میں سیٹ رکھ کر اس کی ذمہ داری آپس میں بانٹ لی۔ وہاں کے ایک ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسٹیشن کی طرف پلٹ آئے۔ ویٹنگ روم میں ہم نے شیو بنائی، نہائے اور اپنا حولیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بجائے پنجاب ایکسپریس کے ہم پیسنجر ٹرین میں دہلی تک کا سفر کریں، تاکہ راستے میں آنے والے چھوٹے بڑے اسٹیشنز اور دوسری جگہوں کے اور وہاں کے حالات سے ہم باخبر ہوتے ہوئے چلیں۔ فاسٹ پیسنجر سے پہر 3 بجے دہلی کے لیے چلتی تھی۔ ہم نے اپر کلاس کی ٹکٹس لیے۔ بٹنڈا اسٹیشن پر ہم نے ایک ملٹری ٹرین دیکھی جو بارڈر کی طرف جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی پلیٹ فارم پر آ گئی اور ہم نے ایک ڈبے کا انتخاب کر کے سب اکٹھے ہی اس میں بیٹھ گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ وائرلیس سیٹ کو اوپر والی برتھ پر رکھا جائے اور جو وہاں لیٹے وہ اس پر اپنا سر رکھ کر خود کو سوتا ہوا شو کرے۔ ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔ پیسنجر ٹرین میں سکھوں کی اکثریت تھی۔ ایک عجیب بات دیکھی کہ سکھ مسافر بھی خاموش اور مایوسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سکھوں کی تو عادت ہے کہ جہاں بھی 2 سکھ اکٹھے ہو جائے، یہ اونچی آواز سے باتیں اور قہقہے لگاتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے سکھوں نے بھی اپنی آزادی 1971 کی جنگ کے ساتھ وابستہ کر لی تھی، مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میں نے ان سے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیں ہندو سمجھتے ہوئے انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ ہم بٹنڈا سے سیدھا دہلی جانے کی بجائے پہلے جالندھر اور پھر دہلی جانے کو ترجیح دی۔ اس طرح ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی چھاؤنیاں تھیں: جالندھری، لدھیانہ اور امبالہ۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشنز پر کافی چہل پہل تھی۔ دہلی سے امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی انٹیلیجنس اور FIU کے لوگ مسافروں کی چیکنگ کرتے تھے۔ اس کی لازماً وجہ مشرقی پاکستان میں بھارت کیمپ PWO سے سینکڑوں پاکستانی فوجیوں کا فرار ہونا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں فوجی جوانوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، اس لیے کچھ تو برما کی طرف نکل گئے، کچھ بھارتی سرحدوں کو اندر داخل ہو گئے اور چھپتے چھپاتے پنجاب بارڈر کی طرف سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں کو پکڑنے کے لیے ان ٹرینوں کو سخت چیکنگ کی جا رہی تھی۔ بٹنڈا سے دہلی کے دوران سفر میں ہم نے 3 اور ٹرینیں دیکھی۔ ایک بٹنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی، 2 اور ٹرینیں جن پر فرانس کے بنے ہوئے AMX 13 اور ایک روسی PT-76 ٹینک، چند توپیں، ہاورز اور ٹائیگر کیٹس میزائل کی بیٹریاں لدی ہوئی تھی۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیت دے کر ترو کیا جاتا تھا۔ میں نے ان تمام ملٹری ٹرینوں کی ڈیٹیل ذہن میں بٹھا لی اور ارادہ کیا کہ سب سے پہلے ان کی ہی رپورٹ پاکستان ایجنسی کو بھیجوں گا۔ ان سب ملٹری ٹرینوں کی مغربی بارڈر پر روانگی بھارت کے پاکستان کے بارے میں موقف کا صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کو بھی ہڑپنا چاہتا تھا۔ تقریباً 9:30 بجے رات ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔ بھارت میں بھی لاہور شاہدرہ اسٹیشن کی طرح
का एक शानदार रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर हमने ट्रेन छूट दी और 2 टैक्सियाँ दिल्ली जाने की किराया पर ले ली। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब्जी मंडी स्टेशन के करीब घंटाघर चौक में हमने एक मामूली होटल में कमरे किराया पर ले लिए। इन दिनों शनाख्ती कार्ड ड्राइव नहीं थे, इसलिए कमरे हासिल करने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। हमने अपना तारुफ एक मामूली कारोबारी के तौर पर कराया जो गुर्दनवाज से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ख़रीदने आते हैं। हमने रहाइश हासिल करने के बाद सामान कमरों में रखा और दो की टोलियों में दिल्ली शहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। हमने होटल के दाखिली दरवाजे के अलावा इमरजेंसी दरवाजे भी तलाश कर लिए। हमने कमरे पहली मंजिल पर लिए ताकि इमरजेंसी की सूरत में छलांग लगाने में कोई दुश्वारी पेश न आए। दूसरे रोज़ मेरे चारों साथी घूमने फिरने के लिए निकल गए। मैंने उन्हें हिदायत की कि कम से कम 4 अदद पैंट और कमीज़ और दीगर ज़रूरियात का सामान भी ख़रीद लाए जो वो शाम तक ले आए। दुश्वारी मुझे पेश आई। मेरे लंबे कद की वजह से बाजारी कपड़े मुझे पूरे न आए। मैंने तकरीबन सारी कपड़ों की दुकानें छान मारी मगर मुझे मेरे साइज़ के कपड़े न मिल सके। सिर्फ एक सफ़ेद सूट एक दुकान से मिला जो मैंने ख़रीद लिया। मज़ीद मैंने 4 अदद 3 फेस सूट और 1 अदद डिनर सूट का कपड़ा ख़रीद कर इसी दुकान में अर्जेंट सिलवाने का आर्डर दे दिया। शूज़ भी मेरे साइज़ के बड़ी मुश्किल से मिले। पाकिस्तान में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुझे आला होटल्स में क़याम करना और मुख्तलिफ क्लब और ख़ासकर सर्विसेज क्लब में भी जाना था, लिहाजा वहाँ के माहौल के मुताबिक मुझे हर चीज़ करना थी। हमने 2 दिन दिल्ली में गुजारे। न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली अच्छी तरह घूम फिर देखी। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली और मुझे नई दिल्ली में क़याम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टैक्ट्स और मीटिंग पॉइंट्स और इमरजेंसी में निकलने के लिए रास्ते भी ज़हन नशीन कर लिए थे। 2 रोज़ बाद मैंने अपने साथियों को मुख्तलिफ औक़ात में कारोनेशन होटल में चेक इन होने का कहा और ख़ुद लूधी होटल का रुख किया। ये 4 स्टार होटल पाकिस्तान से मेरी रहाइश के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इसी होटल के करीब अशोका होटल और अकबर होटल थे और भारतीय बाहरी और हवाई फौज के क्वार्टर्स भी इसी इलाके में वाक़ थे। हम सब मुख्तलिफ औक़ात में पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सफारतखाना इस्लामी तर्ज का एक बहुत अच्छा नमूना था, लेकिन इन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार कर शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। सफारतखाना बंद था और सिपाही रस्मी सा वहाँ खड़ा अपनी ड्यूटी दे रहा था। अब हमें अपने कॉन्टैक्ट्स का इंतज़ार था जिसने रवानगी से 10वें दिन बाद मुझे मिलना और डाक देनी थी। इसमें हमें मज़ीद हिदायत मिलनी थी और इस दौरान हम अपना काम मुकम्मल करना था। मैंने अपने 2 साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बाबीना है। इन दोनों स्टेशन के दरमियान भारतीय टैंक डिवीज़न और 10 आर्म्ड ब्रिगेड के बेस थी। इस नतीजे में ये काम लगाया कि झांस में वो कोई माकूल होटल देकर और मालूम करे कि कोर हेडक्वार्टर जाने के लिए टैक्सी या कोई और सवारी मिल सकती है। झांसी का पुराना किला भी फौज के ज़ेर इस्तेमाल था। इसके मुताल्लिक़ भी कोई मुफीद मालूमात मिल सकती है तो मालूम करें। अपने दूसरे 2 साथियों को मैंने आगरा भेजा कि वहाँ पर मौजूद फौजी छावनी की मुतल्लिक़ जो मालूमात मिल सकती है हासिल करें। ख़ुद अपने लिए मैं नेवल आर्मी और एयर हेडक्वार्टर में दाखिल होने के लिए ज़राए तलाश करने थे। ये हमारा एक तरह का होमवर्क था जिसे हमने कॉन्टैक्ट के आने से पहले पूरा करना था। इसके अलावा अपने हमदर्द दोस्तों को ठिकानों का भी पता करना था ताकि बवक्त ज़रूरत तलाश न करने पड़े। दिल्ली में 2 दिन के क़याम के बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया था। अपने चारों साथियों को मैंने 4 दिन के अंदर वापस आने और चौथे रोज़ मुकर्रर वक्त पर किनाट सर्कस में एक होटल में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मिलना था। मैंने अपने अक्सर रातें अशोका और अकबर होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ शाम होते ही मल्की और गैर मल्की लोग आने शुरू हो जाते थे। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशन होटल में गहमागहमी बढ़ जाती थी और इन लोगों में ही मुझे अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। इन ऊंची सोसाइटी वाले होटलों में जानबूझकर किसी से टकरा जाना, फिर चोरी करके तारुफ कराना और फिर दावत वगैरह आम बात थी, खासकर जब वो महमूर हो। 1 आध घंटे में ही अजनबी लोग खासे पे हो जाते थे। मैंने वहाँ खुद को लूज टी का व्यापारी बताया जो कलकत्ता से चाय मुंबई मंगवाता और अपनी कंपनी में चाय ब्लेंड करके व्यापारियों को बेचता था। ब्लेंडिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ अक़साम की चाय के ग्राइंड करके और मुख्तलिफ
वज़न में इनको मिलाकर चाय की एक ख़ास किस्म तैयार करना। लिप्टन, ब्रोक बैंड और अस्पहानी इसी तरह अपने ब्रांड तैयार करते हैं और दार्जिलिंग के ऑरेंज पीकू चाय का मेयार पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 है। यहाँ पर मेरा काम था कि लिप्टन की ग्रीन लेबल चाय जिसमें 50% तक ऑरेंज पीकू होता है, इसे बरोक ब्रांड की रेड लेबल चाय से मिला अपना ब्रांड तैयार करूँ और इसे फौजी छावनी में निस्फ कीमत पर फरोख्त करूँ। छावनियों में फौजी जवानों और एनसीओज़ के लिए लोज टी ही इस्तेमाल होती है। डिवीज़न हेडक्वार्टर में इस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लाइंग तक रसाई की सूरत में मुझे पूरे डिवीज़न हेडक्वार्टर के लंगरों की सप्लाई का ऑर्डर मिल सकता था। इसी तरह ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में लोकल सप्लाई के तहत मुझे ऑर्डर मिल सकते थे और इसी तरह मेरी रसाई अफसरान आला तक हो सकती थी। अशोका और अकबर होटल में ऐसे ही मौका तलाश में जाता था कि किसी आला फौजी तक अफसर तक रसाई हो जाए और फिर इनके दफातर तक भी, और इस तरह मुझे अपना काम करने में दुश्वारी पेश नहीं आ सकती थी। इस तरह इन आला अफसरान की बेगमात भी बहुत माविन साबित हो सकती है। अफसर आला बनने तक इसका दिल अपनी बीवी से भर जाता है और वो बेगमात अपनी डलती जवानी की आखिरी बहारें लूटने के लिए बेताब होती है। अक्सर ये जोड़े आते तो इकट्ठे हैं मगर दोनों अपने अपने शिकार की तलाश में रहते हैं और जब घर जाते हैं तो अलहिदा जाते हैं। मेरा भी ये काम किसी ऐसी हादसे के सबब हो सकता था। इस दौरान मेरे चारों साथी भी वापस आ गए और बहुत मुफीद मालूमात भी लाए। आगरा छावनी तकरीबन खाली थी। सब फौजी मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर चले गए थे। जो बाकी छावनी में थे वो इक्का दुक्का संतरी ही थे। सिख और जाट बटालियन की दो रेजिमेंट वहाँ मौजूद थी। इधर झांसी और बाबीना के दरमियान आर्म डिवीज़न के इलाके में किसी भी सिविलियन का दाखिला ममनू था। जो जाते इनको हर तरह से चीख किया जाता था। झांसी के किला में इम्यूनिशन डिपो था, इसलिए इसकी निगरानी बहुत सख्त थी। हम भी महज फिल्में देखने के लिए नहीं आए थे। मिशन के दौरान जो भी रुकावटें थी उन्हें दूर करना था। अब हमें कॉन्टेक्ट्स के मुंतज़िर थे। मुकर्रर दिन और वक्त पर मैं मुकर्रर जगह पर पहुंच गया था। मुझे सख्ती से कहा गया था कि कॉन्टेक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक मुकर्रर जगह पर इसका इंतज़ार करूँ। अगर कॉन्टेक्ट्स ना आए तो फ़ौरन वहाँ से गायब हो जाऊँ। मैं मुकर्रर जगह पर मुकर्रर वक्त से 10 मिनट पहले मुकर्रर जगह के करीब पहुँच इंतज़ार करने लगा। खासा गंजानाबाद इलाका था, इसलिए मैं एक स्टॉल पर रसाले देखने में मसरूफ़ हो गया। मुकर्रर वक्त से 5 मिनट पहले कॉन्टेक्ट्स मुझे दिखाई दिया। हमने एक दूसरे की पहचान की। एक सब खैरियत के लिए अपने कॉलर में एक ख़ास रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नज़रें मिलने के बाद अपने दाएं बाजू को एक ख़ास अंदाज में हरकत देनी थी, जिसके बाद कॉन्टेक्ट्स ने भी एक मखसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत जवाबात का मतलब सब अच्छा का सिग्नल था और ख़तरे की सूरत में रुमाल को हाथ में पकड़ना और दूसरी किस्म की हरकत करना थी। मैं इन तरीक़ों की वजाहत इसलिए नहीं करूँगा कि हो सकता है अब भी कुछ तरीक़े इस्तेमाल होते हो। बहरहाल मैंने एक रिसाला ख़रीदा और वापस चल पड़ा। कॉन्टेक्ट्स मुझसे चंद कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट वाली दुकान थी। मैंने मुख्तलिफ फ्रूट्स देखने और इनके रेट्स पूछने शुरू कर दिए। मैं कपड़े का तीला साथ लेकर गया था। इन दिनों प्लास्टिक के शापर नहीं हुआ करते थे। पहले मैंने 2 किलो आम लिए। दुकानदार कागज़ के लिफाफे में मुझे आम डाल कर दिए। मैंने वो तीले में डाल लिए। अब मैं बाएं हाथ में तीला पकड़े था। कॉन्टेक्ट्स मेरे बाएं जानिब खड़ा था। मैं लीची दिखाने को कहा। जैसे दुकानदार लीची दिखाने के लिए वापस मुड़ा, कॉन्टेक्ट्स ने एक पैकेट इंतहाई तेज़ी के साथ मेरे तीले में डाल दिया। मैंने कुछ लीची ली, दाम अदा किए और वापस ही चल पड़ा। कॉन्टेक्ट्स ने भी यकीनन कुछ न कुछ ख़रीदा होगा। करीब ही से मैंने एक टेम्पो में सवार हो गया और फिर थोड़ी दूर जा टेम्पो छोड़ दिया और बस में सवार हो गया। फिर बस छोड़ी और फिर टेम्पो में सवार हो गया और फिर अपनी रहाइशगाह पर पहुंचते तकरीबन 3 गुना ज़्यादा सफ़र किया, इसलिए कि अगर मेरा पीछा हो रहा हो तो उसे धोखा दे सकूं। तो दोस्तों, ये था गाजी नावल का तीसरा किस्त। चौथा किस्त कल इंशाल्लाह आप लोगों को सुनाएंगे, तो बनी रहिए हमारे साथ। वस्सलाम।